Today I am going to discuss transportation problem. This is a transportation problem. This is 5 by 3 problems. These are the warehouses and these are the factories. Factory 1, factory 2, factory 3. And the warehouses M1, M2, M3, M4, M5. The capacity of the factories are noted side by rows 8, 12, 14. These are the capacities. That means, and it is in quintal. 8 quintal capacity for the factory F1. For this factory, the capacity of production is 12 quintals. For third factory, it is 40 quintals. Okay, and the requirements for the warehouses are mentioned here. For these warehouses, first warehouses, the requirement is 4 quintals. In this way, for all warehouses, requirements are mentioned here. Say for warehouse M4, the requirement is 8. And these are the transportation cost noted in the boxes. That means say this form means what? If 1 unit means 1 quintal of the product is being shifted, is being transported from this factory to warehouse M2, then per quintal the transportation cost will be rupees 4 in this way. So I will explain another one. Suppose this means if 1 quintal of the product or materials is being shifted or transported from factory F3 to factory M4, warehouses M4, then per unit transportation cost will be rupees 7. In this way, the transportation costs are mentioned in the table. Now the question is, from which factory, how much of the product to be shifted to which warehouses so that the requirement will be fulfilled and also at the same time the total transportation cost will be minimum. This is the transportation problem. Again I am repeating, what you have to do, you have to find out from which sources which factories, how much quantity of the resources or you can say product or materials to be shifted to which warehouses so that the total transportation cost will be minimum. This is the problem. How we will solve it? We will solve this problem in 2 steps. First, you have to find out the basic feasible solution. First step. Basic feasible solution means this is the starting point. That is not the best or your requirement. Or your requirement. Okay? That is not the best. But in the second step, you have to find out the best solution, means optimum solution. In this case, the minimum cost solution. Okay? That we have to do. So first we have to find out the basic feasible solution. I have already mentioned in my previous lectures that VAM or VOGEL'S approximation method is the best method. Because in that case, what will happen in the second step, when you will optimize it, the computation will be less or less steps you have to do. That's why I'm going to show you how to find out the basic feasible solution by VAM method. Okay? Now how we start? Before starting to find out the basic feasible solution or before start to solve any transportation problem, always you check that it is a balanced problem. Otherwise, you cannot solve. Balance means the total requirements and the total sources are same. You have to check it. If it is not, then it will be called as an unbalanced problem. Then you have to revise it and then solve it further. And how we'll do it, that I'll show you later on when it will come. But in this case, first you check whether it is a balanced or not. If it is not balanced, then you have to do something. Then how much? You will see the total of this is 34. That means the capacity, if you add all this, the total is 34. But the requirement is 30. If you add this plus this plus this plus this plus, you will see this is 30. That means this is not a balanced problem. Then what you will do? That I'm going to mention what you will do. Okay. That means you cannot proceed directly to find out the basic feasible solution. You have to do something and only then you can proceed. And this is an unbalanced transportation problem as the total of the sources or capacity not is equal to the total requirements. That means capacity, you can say capacity not is equal to the not is equal to the requirements. Okay, बोलो सेम नहीं है. Then how we proceed?
Huh. You have to make this problem as a balanced transportation problem. How you will do it? That means in this case, the requirement is less, but the capacity is more. Then what you will do? You have to add one dummy requirements or dummy warehouses to make it balance. What is the difference quantity? 4 quintal. That's why what will you do? You will add one dummy. You will add one dummy. Dummy, it is for the mathematical purposes only. Dummy requirements. You will put one dummy requirements of quantity 4 to make it a balanced problem. I'm just erasing it to get the space. This is called dummy. You can write dummy warehouses. Warehouses, okay? So how much quantity will be? 4. And it was already mentioned 8, 12, and 14. Now, to again check, if you make total, then we see this is 34 and 34. That is, now it has become a balanced problem. Now we can proceed to find out the basic feasible solution by VAM method. I think up to this it is okay. Is there any problem? No. So again I want to mention it. Suppose in this case the shortage for the requirements. If the capacity is less one, then what you will do? तो तुम क्या करोगे? तो उसमें dummy sources you have to add. एक dummy source करके difference हम आपको ले देना है. I think it is okay. Now, what will be the cost? How much transportation cost you will consider? For the dummy, you will always put 0. A transportation cost you put as if it is not being shifted at all. The transportation cost is 0. Why 0 you are going to put here? 0 indicates you are not at all shifting any quantity. Just it is for mathematical purpose we have written this dummy requirements in this case. I think it is clear now. So it is dummy sources, then you will add the difference. If the sources is less than requirements, then horizontally you will add one row of the difference zone and put 0. So for always dummy sources or requirements, you have to put. Now it has become a balanced problem. I am erasing it just to get the space, but you have to write it in your copy. Now I am going to start to solve this problem. The VAM method is being applied to find the basic feasible solution. I think it is clear. Now, how we find out the basic feasible solution by VAM method? What we do, I have already mentioned earlier also, but again I am repeating. For each row, first you will find out the lowest cost and the immediate lowest cost, and put the differences of the two values. In this case, for the first row, what is the lowest cost? Lowest cost is 0. And immediate lowest cost, इसका बाद में जो lowest cost है वो है 2, and we 2, E2, 2, again 2 is the immediate next lowest cost. Then what is the difference? You put the difference here, 2 minus 0 in this way. Actually, this is called penalty cost, because instead of this place, if you place the quantity in other place, extra 2 rupees cost you have to incur, and we will minimize that. That I will show step by step. The same process you have to do column one. So next row, for next row, what is the lowest cost? 0, and the immediate lowest cost is 1. Okay, so difference is 1 minus 0 is थोड़ा फास्ट कर रहे हैं. Next third row, same process, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट कर लेता हूँ. The lowest cost is 0 and the immediate lowest cost is 3. Then what is the difference? 3 minus 0 is 3. The same process you have to continue column wise. Okay, the lowest cost is 4 and the immediate lowest cost is 5. Then the difference is 1. The lowest cost is 2, the immediate lowest cost is 4. That's why the difference is 2. The lowest cost is 2 and the immediate lowest cost 4. That's why the difference is 2. And in this case, 2 is the lowest cost and immediate lowest cost is 2. Same. That's why the penalty will be 2 minus 2 is 0. In this case, the lowest cost is 1 and immediate lowest is 3. That's why it will be 2. And for this 0, immediate lowest is 0. In this way, you have to put all the differences row wise and column wise. Actually, technically, this is nothing, or the penalty cost, we say
Why penalty? Because if we not shift any quantity from this cell other than this to any other lowest cost cell, the penalty or excess cost will be rupees 2. In this way, we put the penalty cost and differences cost. Okay. Now, what you will do? You find the highest difference. To find the highest difference, you better write the difference side by side. The highest difference from all these differences. We have noted this. The highest difference है उसको identify करो, and this is the highest difference. Now allocate the quantity to this row. जबकि highest cost, highest difference is this. अगर highest difference है यहाँ पर होगा, then what will be? Suppose instead of 2 it is 5. Highest difference is 8. Then you have to put allocation to this column. And how will put the allocation? How will put the allocation? How will put the allocation? You have to put the allocation to the lowest cost element. इस रो में जो lowest cost element आ रहा है, cost is this, तो वहाँ पर allocate कर देना है. Cost allocation will here. तो allocation मैं इस box पर करेंगे. And how much you will allocate? This is 4 and this is 14. ये दोनों में से जो lowest होगा, minimum of these two, that much will be allocated. 4. ठीक है. तो 4 हो जाने के बाद, अच्छा 5 क्यों नहीं? सपोज नहीं सर, वाई 4? आई विल राइट इट 5 इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि योर रिक्वायरमेंट इज 4. तो तुम उससे ज़्यादा कैसे रिक्वायरमेंट में भर दो? मैक्सिमम 4 ही ना भर सकते हैं. तुम बोलोगे सर यहाँ पर मैं 15 लिखूंगा. नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि अवेलेबिलिटी इज 14, तो 15 कैसे लिखोगे? तो यहाँ 5 भी नहीं लिख सकते हैं इसलिए रिक्वायरमेंट इज 4, मैक्सिमम 4 ही तक जा सकते हैं. एंड ये जो है 14 से ऊपर जा नहीं सकता है क्योंकि अवेलेबिलिटी और कैपेसिटी इज 14. सॉरी, हाँ ठीक है 40, सॉरी हाँ ठीक है. तो इसलिए दोनों का जो मिनिमम है उसको मैं शॉर्ट कर दूंगा. ठीक है. लेकिन आई एम रिपीटिंग, जब स्पेस इज वेरी लिमिटेड, तुम कॉपी में इसको नोट कर लेना है. मैं इसी पर ही मैं करते चलूंगा. ठीक है. तो फास्ट एलोकेशन हमने कर दिया. ये फास्ट एलोकेशन का मतलब कि दिस सोर्स से, इस फैक्ट्री से, दिस डामी रिक्वायरमेंट यहाँ पर 4 यूनिट को ले जाना है. ठीक है. अच्छा, जैसे 4 ले जाएंगे तो बैलेंस विल बी 0 क्योंकि और तो कोई रिक्वायरमेंट है नहीं. और यहाँ अवेलेबिलिटी में क्या बच जाएगा? 4 ऑलरेडी जो है शिफ्ट कर दिए, तो 10 यूनिट्स बच जाएगा. 10 यूनिट्स बच जाएगा. ठीक है. किस तरह से? तो आगे का लिए मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं. इसको देखिए, यू विल डू इट इन ए सेपरेट टेबल क्योंकि मेरे को तो पूरा फिर उतारना पड़ेगा. इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम. तो यू आर इन हायर स्टडी, आई थिंक इतना तो समझ रहे हो कि मैंने इसको और ज़रूरत नहीं है. इसका काम इज ओवर. इसका काम ओवर इसलिए हो रहा है कि देखो 4 यूनिट्स ऑलरेडी सेटिस्फाई हो गया जो रिक्वायरमेंट है, तो इस पर तो और कोई ज़रूरत नहीं. तो इसलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ. ठीक है. तो थोड़ा जगह भी ज़्यादा मिल जाएगा. आई एम इरेजिंग इट. तो इसका ज़रूरत और आगे का नहीं है. लेकिन तुम्हारा कॉपी में ये रहेगा. तो ये कितना हो जाएगा दिन इसका बाद? तो 8, 12 और 10. सर 10 क्यों? क्योंकि 4 तो ऑलरेडी हमने एलोकेट कर दिया था इसलिए, और 10 हो गया. ओके. देखो अगेन चेक करो, देखो तुम्हारा दोनों बड़ा आ जाएगा. दोनों में कोई इतना एक बार दिखाई देता है, लेकिन आगे मैं नहीं दिखाऊंगा. नाउ आई एम गोइंग टू शो यू 30 हो रहा है. 30 इधर भी चेक करो. 8 14 5 30 हो रहा है ना, क्योंकि 4 दोनों साइड से घट गए. 4 यूनिट्स को शिफ्ट कर दिए. तो ये तुम्हारा नेक्स्ट टेबल पर ये जाता है. मैं इसको भी इरेज कर देता हूँ स्पेस का लिए. तो इसको जो है फिर मैं नेक्स्ट एलोकेशन के लिए फिर करते हैं. दिस इज एक्चुअली VAM मेथड. द सेम प्रोसेस यू विल रिपीट अगेन. क्या? फर्स्ट रो वाइज यू चेक द लोएस्ट कॉस्ट, इन दिस केस 2, एंड इमीडिएट लोएस्ट कॉस्ट व्हिच इज आल्सो 2. द डिफरेंस इज 0. ठीक है. फॉर सेकेंड रो द लोएस्ट कॉस्ट इज 1 and immediate lowest cost is 2. That's why the difference is 1. And for third row, the lowest is 3 and immediate lowest is 4. That's why this is 1. Column wise देखा तो फिर क्या हो जाएगा? Same process जो है
जस्ट प्रीवियस टेबल में किए थे। तो लोएस्ट कॉस्ट इज 4 एंड इमीडिएट लोएस्ट 5, द डिफरेंस इज 1. 2 lowest and 4, that is 2. The lowest is 2 and the immediate lowest is 4, that's why PV 2, and 2 is the lowest, immediate 0, right? 2 immediate lowest 2, the difference is 0. So 1 and immediate lowest is 3, that's why. तो इस तरह से सारा लोएस्ट को मैंने नोट कर दिया, ठीक है। अब देखो व्हाट यू विल डू, अगेन फाइंड आउट द हाईएस्ट डिफरेंस। हाईएस्ट डिफरेंस को आइडेंटिफाई करना है, ये डिफरेंस का जितना सारे है, व्हाट इज हाईएस्ट डिफरेंस, उसी हिसाब से एलोकेशन होगा। तो यहाँ हाईएस्ट डिफरेंस 2 है, लेकिन 2 जो है 3 जगह पर है, 3 जगह पर है। कौन सा सिलेक्ट करोगे, यू कीप इन योर माइंड, यू ऑलवेज ट्राई टू एलोकेट द हाईएस्ट अपर रो। जितना सारे रो है उसका सबसे ऊपर का जो रो रहेगा उसमें एलोकेट करने का कोशिश करोगे, एंड लेफ्ट मोस्ट कॉलम। तो यहाँ पर अगर करते हैं तो कहाँ पर एलोकेशन होगा, सब उसके मैं इसको लेते हैं 2, तो ई कॉलम पर होगा। तो लोएस्ट एलिमेंट कौन सा है, यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा अगर इसको लेते हैं। अगर ये लेते हैं वेयर इट विल बी बेस्ट द एलोकेशन, लोएस्ट कॉस्ट कहाँ है, यहाँ, तो यहाँ पर एलोकेशन हो जाएगा लोएस्ट कॉस्ट। और इसको लेते हैं तो क्या हो जाएगा, वेयर इज द एलोकेशन, तो लोएस्ट कॉस्ट कहाँ है, यहाँ। तो तीनों में से हाईएस्ट रो कौन सा है, रो तो ये दोनों में सेम है हाईएस्ट रो, लेकिन लेफ्ट मोस्ट कॉलम कौन सा है, ये दोनों को देखें तो दिस इज द लेफ्ट मोस्ट। ये कन्वेंशनल रूल बना के चलो, यू कैन सी द बुक ऑफ कांति स्वरूप ऑपरेशंस रिसर्च, इट इज वेरी क्लियरली मेंशन्ड देयर आल्सो, ठीक है। तो क्यों मैं यहाँ पर नहीं पुट करेंगे, नहीं यहाँ पर नहीं पुट करेंगे, यहाँ पर क्यों करेंगे, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, क्योंकि हमको सबसे हाईएस्ट ऊपर का रो में सिलेक्ट करना है और देखना है जो लेफ्ट मोस्ट कॉलम पर। अगर वो एलोकेशन यहाँ होता तो हाईएस्ट रो एंड लेफ्ट मोस्ट कॉलम, रो को तो पहले देखना है, तो मैं हाईएस्ट रो पर जाएंगे, तब लोएस्ट कॉलम पर जाएंगे, तो उस हिसाब से उसको एलोकेट कर देंगे। तो यहाँ पर जो है तुम्हारा ये चीज़ हमने देखा है, तो यू शुड एलोकेट हियर। तो एलोकेशन क्या होगा, व्हाट इज एलोकेशन, रिक्वायरमेंट 4 है, रिक्वायरमेंट इज 4 और अवेलेबल 8 है, तो दोनों में से जो मिनिमम होगा वही एलोकेशन। पहले भी जो मैं ऑलरेडी बता दिया था वही चीज़ है। तो 4 और यहाँ तक क्या हो जाएगा, 4 बच जाएगा, और यहाँ पर 0 फुल एलोकेशन हो जाएगा। फुल एलोकेशन हो जाएगा तो इसको और आगे नहीं जाएगा कंसीडरेशन में, इसका फुल एलोकेशन हो गया। तो क्यों ये यहाँ पर 4 आ रहा है और बच जाएगा कितना, 4। आई थिंक इट इज क्लियर क्यों ऐसा लिए, ठीक है, क्योंकि दोनों का जो मिनिमम रहता है, अगर यहाँ 3 रहता तो कितना लिखते हैं, सपोज कि 8 की जगह पर 3 है, तो क्या हो जाता है, यहाँ 3 होता है। 4 और 3 का मिनिमम है 3 ही दे सकते हैं, अवेलेबल 3 है तो मैं 4 नहीं दे सकता। लेकिन इन दिस केस जबकि ये तुम्हारा 4 है तो 8 और 4 का नीचे मिनिमम को दे दिया, ठीक है। तो ये हो गया, इसको आगे जो यू नॉट टेक इट इन कंसिडरेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप मैं इसीलिए कर देता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा इरेज कर देंगे। एक टेबल का मैं एक ही बोर्ड में कर देता हूँ, जस्ट टू सेव द स्पेस, और चाहे तो उसको मिटा दो करके M1 करके भी कर सकते हैं। क्या कंफ्यूजन होता तो हम कर देते हैं, दैट इज वेरी ट्रू, कर ही देते हैं। तो इसका तो कोई ज़रूरत नहीं, तो मैं इसको इरेज कर दिया, इसको इरेज कर दिया, इनटू की जगह पर क्यों नहीं आएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ आगे का टेबल में जो है ये M1 M3 रहेगा, दिस इज 4 5, तो तुम्हारा कोई कन्फ्यूजन ना हो, तो इसलिए मैंने वो मिटा दिया, ठीक है। तो M1 M3 इस तरह से रहेगा, इस तरह से ये प्रॉब्लम आ गया। और मैं ये भी मिटा देता हूँ, ये फ्रेश टेबल पर आप ये 4 नहीं, सॉरी 8 नहीं 4 हो जाएगा। नाउ दिस विल बी 4। यू कैन अगेन चेक इट, बट जरूरत नहीं है क्योंकि तब तो दोनों साइड से सेम सी हो रहा है, चेक कर भी सकते हो। अगर कंफ्यूजन है तो देखो दोनों बराबर हो जाए, 16 तो 26 और चलो 8 16 तो 26, हमेशा जो है ये दोनों बराबर रहेगा, ठीक है। तो मैं आगे का देखते हैं। फिर यहाँ M2 ड्रॉप कर दिए क्योंकि रिक्वायरमेंट M2 का फुलफिल हो गया। तो रो वाइज चलो लोएस्ट एंड इमीडिएट लोएस्ट, 2 और 2 का डिफरेंस कितना है, 0। फिर दोनों का डिफरेंस 1 एंड हायर लोएस्ट इज सेकेंड लोएस्ट इज 2 1, यहाँ लोएस्ट इज 3 एंड इमीडिएट लोएस्ट 4,
और ये 1 हो रहा है। अगर कोलोमाइज चलते हैं तो 4 और 5 दोनों का डिफरेंस ये यहाँ लोएस्ट 2 और इमीडिएट लोएस्ट 4, तो दैट्स वाई द डिफरेंस इज 2 और यहाँ लोएस्ट इज 2, इमीडिएट लोएस्ट इज 2, दैट इज 0, लोएस्ट 1 एंड लोएस्ट 3, दैट इज 2। तो फिर चेक द हाईएस्ट डिफरेंस। हाईएस्ट डिफरेंस कौन सा हो रहा है? ये 2 हो रहा है, ये भी 2, ये भी 2, लेकिन हम बोले कि ऑलवेज कोशिश करो कि हाईएस्ट रो पर एलोकेशन हो, ठीक है, बाय तरफ लोएस्ट कॉलम, लेफ्ट साइड कॉलम। तो इस पर जो जाएगा तो कहाँ पर लोएस्ट एलिमेंट इज दिस, यहाँ पर जाएगा भैया हाईएस्ट रो, और यहाँ करते हैं तो कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर। तो हाईएस्ट रो तो नहीं होता, फर्स्ट रो देखेंगे मैं। हाईएस्ट रो, अगर हाईएस्ट रो का अगर 2 जगह पर आ रहा है तो लेफ्ट मोस्ट कॉलम पर जाएंगे, तो यहाँ पर एलोकेशन हुआ। तो एलोकेशन रूल से 4 और 6 दोनों में जो मिनिमम है, दोनों में मिनिमम कितना आ रहा है 4, दैट्स व्हाई इट इज 4। तो बच जाता है 2 और यहाँ 0 हो जाएगा क्योंकि कोई और बाकी नहीं है। तो 4 ये नोट कर लेना है। तो इस तरह से ये जो तुम्हारा था F1, F2 और F3 फैक्ट्री 6 था, तो फैक्ट्री 1 का खत्म, ये कंप्लीट हो जाएगा, 4 आ जाएगा F1, F3। तो मैं फिर इसको बिठा देते हैं, जबकि इसका कंप्लीट करके इसको आगे लेना नहीं है तो तुम्हारा कॉपी में ये रहेगा। मैं यहाँ पर इसको बिठा देता हूँ सो दैट स्पेस को यूज़ करेंगे। तो इसका कोई ज़रूरत और है नहीं, ये कंप्लीट हो गया। इसको मैंने दे दिया, एक टेबल में भी हम कर सकते हैं, लेकिन इनिशियली थोड़ा समझने में दिक्कत आ सकता है, इसलिए मैं अलग अलग करो। एग्जाम में भी तुम अलग अलग भी करोगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये कौन सा था, यहाँ पर नोट कर देते हैं। M1 था, M3 था, M3, M4 एंड M5 और ये 2 फैक्ट्री का अभी है। तो ये 0 हो गया, तो इसलिए हटा दिया। देखो फिर अगेन चेक करो, देखो बड़ा बड़ा जाएगा 22, 16, ये 2 है, अब इसको 2 ही लिख देते हैं, 2 बचा हुआ था, 2 2 6 और 14 8 22, 82। ये हमेशा सेम रहेगा, सेम प्रोसेस विल कंटिन्यू। अगेन लोएस्ट कॉस्ट एंड इमीडिएट लोएस्ट कॉस्ट दोनों का डिफरेंस जो है 1, ये लोएस्ट कॉस्ट 3 एंड इमीडिएट लोएस्ट कॉस्ट 4, द डिफरेंस इज 1, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, 5 लोएस्ट एंड 6, दिस इज 1, 4 is the lowest and 5, so 1, 2 and 7 is the lowest and immediate lowest 2 ही है, तो 5 और ये 2 हो रहा है। और ज़्यादा रिपीट नहीं करना चाह रहे हैं क्योंकि टाइम सेव करने के लिए। लोएस्ट एंड इमीडिएट लोएस्ट यही है, तो दिस इज द हाईएस्ट डिफरेंस। तो एलोकेशन कहाँ पर जाएगा, एक ही है ना सब में से, तो दिस इज द हाईएस्ट डिफरेंस। तो कहाँ पर जाएगा, तो दिस इज द प्लेस जहाँ पर एलोकेशन होगा। 8 और 12 दोनों में से जो मिनिमम होगा उसी को रखना है, तो इसलिए 8, ये 0 हो रहा है, ठीक है, और ये कितना जाएगा, 8 चला गया तो 4 हो जाएगा। आई थिंक इट इज क्लियर। तो ये 4 जो वेयर हाउस है, इस सोर्स है, इस वेयर हाउस पर 8 यूनिट जाएगा। अभी भी इस सोर्स में 4 यूनिट बचा हुआ है, लेकिन इसका कोई और जरूरत नहीं, ये फुल हो गया। तो एलोकेशन मैंने यहाँ नोट कर दिया है। तो मैं इसको बिठा देता हूँ, इसको बिठा देकर इसको थोड़ा सा यही नोट कर देते हैं, सो दैट यू शुड नॉट आगे का टेबल जो है यहाँ M5 इसको इस तरफ कर देते हैं, M5 तो 1 एंड 3, ठीक है, और ये डिफरेंस को भी मैं मिटा देता हूँ। दिस इज अनदर टेबल, यू विल प्रिपेयर अनदर टेबल। ये 4 हो जाएगा, 12 का जगह पर ये 4 बचा हुआ है, 4, ये 4 अब ये रह गया। फिर चेक करो, देखो अगर कन्फ्यूजन है तो 14 यहाँ तो 10 14, क्योंकि सेम अमाउंट राइट कॉलम्स जा रहा है, इसलिए दोनों का हमेशा जो है क्वांटिटी बैलेंस सेम है। तो सेम प्रोसेस विल डू, द लोएस्ट इज 1, इमीडिएट लोएस्ट इज 1, द डिफरेंस इज 0। यहाँ लोएस्ट इज 3 एंड इमीडिएट लोएस्ट 3, द डिफरेंस इज 0। और यहाँ जाओगे तो 1 एंड 3 2, सेम प्रोसेस में कोई डिफरेंस नहीं, थोड़ा लंबा जाता है, यही है। 5 एंड 6, द डिफरेंस इज नो मोर। व्हाट इज द हाईएस्ट डिफरेंस, हाईएस्ट डिफरेंस इज दिस। तो इसका लोएस्ट कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा लोकेशन। तो कितना है यहाँ पर 4 2 नहीं लिखते, M5 का कितना था, M5 का 8 था, सॉरी हाँ 8 था, M3 M5 8 था ना, 4 2 6 14 10 से 14, ओह सॉरी थोड़ा सा ठीक कर देते, M 2 जगह लिखा गया ना, M5 इसको तो मिटाना पड़ेगा ना, M5 को
यहाँ पर आ रहा है इसलिए M1 M3 M1 M3 M5 अब 4 और 10 ये रहा था ना, ये तो बड़ा 40 और यहाँ भी 14 था, ठीक है। तो डिफरेंस 1 सॉरी इसको थोड़ा ठीक करना पड़ेगा, वहाँ एक गलती हो गया था, एक कलम को मैं वहाँ रख दिए थे, तो पहले इसको डिफरेंस निकाल लेते हैं फिर से। नीचे का तो इतना 1 का 3 2 4 1 5 5 6 1 हो गया है 1 एंड डिफरेंस इज 4 और यहाँ लोएस्ट इज 3 इमीडिएट लोएस्ट 4 दैट इज 1। तो व्हाट इज द हाईएस्ट डिफरेंस, या हाईएस्ट डिफरेंस एलोकेशन कहा जाएगा, यहाँ पर एलोकेशन करेंगे। एलोकेशन कितना होगा 8 और 4 दोनों में से जो मिनिमम है तो 4 यहाँ पर जाएगा, तो ये बैलेंस हो जाता है 4 और ये हो जाएगा 0, पूरा एलोकेट हो जाता है, ये भी खत्म। तो ये हो जाने के बाद केवल एक ही रो बच जाता है, इसलिए यू कैन पुट द बैलेंस क्वांटिटी। तो भी मैं इसको सेपरेट दिखाई देते हैं। तो नेक्स्ट इसमें क्या हो जाएगा, चला गया करने के बाद फिर एक ही रो रह जाता है, दिस इज फाइनल रो। फाइनल से क्या हो जाएगा 10 यूनिट 10, इसको मिटा देते हैं, ये 4 रहेगा, 4 2 6 4 10, ये बैलेंस 4 लिखा जाएगा इसका 4 बैलेंस। तो फिर ये बैलेंस हो रहा ये 10 4 3 4 2 6 4 10 4 2 6 4 10, ठीक है 4 2 6 10। अच्छा अब जबकि लास्ट एक ही रो बचा हुआ है, यहाँ डिफरेंस निकलना नहीं निकलना बात बराबर है, यू हैव टू पुट द रिमेनिंग क्वांटिटीज द रिक्वायरमेंट्स, इसलिए ये 4 लोएस्ट से शुरू करो, कोई दिक्कत नहीं है। लोएस्ट कॉस्ट इज 3, तो लोएस्ट कॉस्ट 3 हो जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो तो तीनों लिखना ही पड़ेगा। तो सॉरी 3 या 4, तो ये हो जाएगा 4 अवेलेबिलिटी है तो 4, ये 4 और यहाँ पर ये 2 तो डालना ही पड़ेगा, तो कोई आगे प्रोसेस करने का जगह नहीं है। 4 2 6, जैसे ही मैंने 4 निकाल दिया तो 6 हो जाएगा बैलेंस, उसके बाद 2 चला जाएगा तो 4 और 4 4 0 हो जाएगा। क्या कुछ दिक्कत है तो मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ। आई थिंक 10 था ना, जैसे ही मान लो ये 10 था, जैसे मैंने 4 यहाँ डाल दिया तो क्या बच जाएगा 6, फिर 2 डाला है तो 4 और 4 4 चला गया तो ये 0। तो इस तरह से पूरा एलोकेशन ये था, तुम्हारा पोजीशन क्लिक कर रखेगा M1 M3 and in this way you have to find out the basic allocations by VAM method। मैं फाइनली एक टेबल में इसको दिखा देता हूँ जो एलोकेशन इसका आया है। इरेजिंग इट, ये सारे जो मैंने इरेज करते चला गया उसको मैं अभी एक टेबल में दिखा देता हूँ जो क्या एलोकेशन था। तो एक्चुअली प्रॉब्लम था 3/5 डाबी लेके 6 हो गया था, तो इसलिए फिर मैं पूरा टेबल को दिखाने के लिए ये 6 तक जाना पड़ेगा। तो कहाँ कौन एलोकेशन हुआ है, दैट विच 1 2 3 1 2 3 और ये 6, ये 1 2 3 4 5 and 6, ठीक है। तो ये F1 एक फैक्ट्री, 3 ये etc वेयर हाउस है 1 M2 M3 M4 M5, इसके बाद डमी वेयर हाउसेस M6 भी लिख सकते हैं, नो इश्यूज। और एलोकेशन तुम्हारा क्या हुआ, बेसिक एलोकेशन आया था, देखो चेक कर लेना, यहाँ पर 4 था 4 आया था 4, सेकेंड में जो है 2 की जगह पर 8, कॉस्ट भी लिख देते हैं 4 4 2 2 2 6 एंड ये 0 0 0 डाली का ये 5 4 5 2 4 5 2 5 4 5 2 1 0 1 0, इसका कॉस्ट कितना आ रहा था 6 5 6 5 4 7 3 4 7 3 0। इसी का लोकेशन ये 2 पर था 8, इसमें था 4 था बेसिक लोकेशन, ये था 4 और यहाँ पर 2 और 4 and 4। You can check the requirement availability cell। requirement में क्या था 4 4 6
8 8 एंड 4, यहाँ पर क्या था 8 12 16, तब जाके ये टोटल 34 with 34। तो ये जो है बेसिक एलोकेशन है। बेसिक एलोकेशन मीन्स दिस इज द इनिशियल टेबल स्टार्टिंग पॉइंट, लेकिन ये बेस्ट नहीं है। बेस्ट हुआ कि नहीं, फॉर दैट रीजन यू हैव टू गो फॉर अनदर स्टेप व्हिच इज कॉल्ड मॉडिंग। मॉडिंग मीन्स मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। उसको हम अप्लाई करके देखेंगे कि ये बेस्ट है कि नहीं है, तो उसको सुधारना पड़ेगा। तो दैट आई विल शो माई नेक्स्ट वीडियो, जस्ट इंडियन द स्टार्टिंग टेबल, लेकिन ये तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैंने 2 में बांट दिया। तो प्रॉब्लम सेम रहेगा, एलोकेशन में यहाँ से शुरू करेंगे, बट इट विल बी इन द नेक्स्ट वीडियो। आई थिंक इट इज क्लियर। अच्छा, अब एलोकेशन ये उसका मतलब क्या है? दैट मीन्स द फास्ट एलोकेशन मैन हियर, दैट मीन्स फॉर फास्ट फैक्ट्री यू हैव टू शिफ्ट 4 यूनिट्स टू दिस वेयर हाउसेस एंड 4 यूनिट्स टू दिस वेयर हाउसेस। तो तुम्हारा ये जो 8 यूनिट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी है, ये टोटल शिफ्ट हो गया, और इस फैक्ट्री से 8 यूनिट्स में इस वेयर हाउसेस और 4 यूनिट्स इस वेयर हाउसेस में देंगे। देखो 12 कैपेसिटी फुल होगी। और थर्ड फैक्ट्री से 4 यूनिट में देंगे फर्स्ट वेयर हाउसेस को, और ये 2 यूनिट्स देंगे इस वेयर हाउसेस को, 4 यूनिट्स इसको, और डमी जो सोर्स लगा दिए उससे फुल। देखो टोटल तो 4 से 6 14 16, तो टोटल अवेलेबिलिटी या कैपेसिटी फुलफिल हो गया। और रिक्वायरमेंट्स भी चेक कर लो, ये देखो पूरा रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रहा है। ये 4 का 4, यहाँ भी 4 यूनिट्स रिक्वायरमेंट था, ये भी 4 8 2 6 या 8 4 4 8, ठीक है। तो ये एक बेसिक एलोकेशन हो गया। लेकिन ये जो कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब you need not to shift, you cannot shift any quantity from this source to this warehouses। इस सोर्स से इस warehouse को कोई नहीं जाएगा, वैल्यू 0 है, इसमें भी 0 है, ठीक है, इस पर 0 ही है। तो जहाँ भी एलोकेशन नहीं है, उसका मतलब तो कोई भी क्वांटिटी शिफ्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि उसका तो लिमिटेड अवेलेबिलिटी है ना। अच्छा, अगर ये एलोकेशन है, देन व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट, इनिशियल टोटल कॉस्ट, इसमें तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना हो जाएगा। तो ये तो 0 है, इसलिए 0 to 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 है, तो कोई यह नहीं जा रहा है ना, इसलिए यहाँ पे 0 टू लेकिन ये जा रहा है। तो 1 यूनिट शिफ्ट करने के लिए 2 रुपया खर्चा है, तो 4 जा रहा है, तो 4 इंटू 2, और दिस यहाँ भी प्लस 4 इंटू 2, इसी तरह से फिर 8 प्लस 8 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 4 2 into 4 plus 4 into 3 plus 4 into 0, क्योंकि डाबी का कॉस्ट 0 रखे हैं। तो ये टोटल कॉस्ट अगर कैलकुलेट करते हो, then you will see the total cost will be how much? The total cost will be, you have to check it। हमने तो टोटल यहाँ पर किया नहीं, तो कॉस्ट कैलकुलेटर से देख लेते हैं। टोटल कॉस्ट विल बी, कैलकुलेटर का लाइट बड़ा कम आ रहा है। हाँ, 8 देखो, तो 8 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 24 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 12, कितना जाएगा? 8 8 16 4 24 प्लस 8 प्लस 12 16 32 36 36 38 सॉरी 56 56 plus 24, and that is rupees 80. You can calculate, you can check it, this is rupees 80 only. The total cost will be rupees 80. But this is not the minimum cost, this is rupees. We cannot guarantee that this is the minimum cost. So for this initial basic feasible solution by VAM method, the transportation cost comes to rupees 80. But it is not guaranteed this is the minimum cost. Because our purpose is we have to calculate the minimum cost transportation allocation. So that is to be done by another method which is called body method, that I will show in my separate video. I think it is clear, and these are the basic allocations. Okay, and if you want to write in Excel, that I will discuss later on. तो VAM का थ्रू कैसे बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकाला जाता है, that I show you, I have discussed you, और निकाले भी हैं। तो इस वीडियो में इतना ही तक, to find out the basic feasible solution, और आगे जाके मैं दिखाएंगे एक टेबल में ही सारा काम कर सकते हैं, बट थोड़ा एडवांस नॉलेज, थोड़ा सा प्रैक्टिस होना चाहिए, ऑलवेज दैट कन्फ्यूजन हो जाएगा, बट इट इज राइट, इस तरह से दैट विल बी बेटर। तो थैंक यू। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो यू विल डेफिनेटली राइट टू द कमेंट बॉक्स, देन आई विल
again explain it. No problem, no issues. Thank you. Thank you very much.